In the last class, we studied about the equations of motion for constant acceleration. And for your information, we have already started the topic of kinematics. Kinematics, if you recall, is the study of motion of rigid bodies without giving any due consideration to the forces that are causing the motion. So we do not care about what is causing the motion, we just care about if the motion is taking place. What is the displacement of the rigid body? What is the velocity of the body? And what is the acceleration of the body? So these are the things that we are concerned in kinematics. When you talk about kinetics, then we think about forces also. So since we are studying kinematics, we will be dealing with displacement, velocity, and acceleration. And in the last class, we also saw some relationships. If the displacement is given by s, then velocity can be given as the first time derivative of displacement. And acceleration can be given as the first time derivative of velocity or the second time derivative of displacement. There is a special derivative relationship for acceleration that we understood, and that is given by sorry for the interruption. So if you take your acceleration as dv by dt, and if you write your dv by dt in this format, then you get a new relationship. Acceleration is dv by ds into v, because ds by dt is your velocity. The acceleration can also be written as v dv by ds. This is just for your information. And in one derivation, this expression is also used. And then we went on to derive some standard formulae that are used in the case of constant acceleration. So if the acceleration is constant, then we have the following relationship. The final velocity of the object is u plus at. The difference between the squares of initial and final velocities is given by twice of acceleration into displacement, and s is equal to ut plus half at square. These relationships were also derived in the last class. And now we proceed then rectangular components of velocity and acceleration were also discussed. Angular velocity and angular acceleration were also discussed, omega and alpha. Now we come to equation of motion in circular motion when angular acceleration is constant. Now in order to study this,
You just have to see these relationships and make a comparison with that of rotational motion. Now, if the initial velocity in translational or linear motion is u, then the counterpart in rotational motion can be taken as omega naught, omega suffix 0, to represent the initial velocity in rotation. If the final velocity in linear motion is v, then the counterpart in circular motion can be simply written as omega. If the acceleration is a in linear motion, then the counterpart in circular motion can be alpha. If s is being used to represent displacement in linear motion, in rotation we will take theta. The units will vary. Omega naught and omega have units as radians per second. Alpha is radians per second square and theta is radian. So if you make these replacements, then you won't have to derive all these equations once again. But for the sake of formality, the derivation has been given in your notes. So exactly like you derived the equations for linear motion, you get these equations for circular motion also. But again, under the assumption or under the condition that angular acceleration is constant. In linear motion, linear acceleration was taken as constant, and now for circular motion, you will take alpha as a constant. So when angular acceleration is constant, you can go back to your formula here, and instead of v is equal to u plus at, for circular motion you can write omega is equal to omega naught plus alpha t. And similarly, the replacement equation in circular motion for v square minus u square is equal to 2as will be omega square minus omega naught square will be equal to 2 alpha theta. And similarly, you can replace the last equation. Instead of s for circular motion, you will write theta is equal to ut, you will write as omega naught into t plus half acceleration a will be replaced by alpha and t square. So these become the counterpart equations in circular motion. Please remember, these are not the equation for general curvilinear motion. These are specifically for a perfectly circular motion with constant radius. You have to remember this. With constant angular acceleration, where alpha is constant. So this is not very difficult to understand, and we will not dwell upon this topic for a longer duration. So let us move on. And finally, you see all these equations have been developed. And now we will be devoting the rest of our time for this lecture in solving these examples. Now I will not be solving all the problems. Maybe one or two problems we will take some time, and I will allow you to use your calculators and come up with the correct answer or not. Because I think there are some 7 to 8 questions in this collection, and I have included some 1 or 2 additional problems from circular motion also. So I will resend this document that you are seeing right now on your screen, which will now include 2 additional problems of circular motion. Earlier, the one that I sent you did not have these problems. So anyway, let us read the first problem. A bullet is moving at the rate of 250 meter per second. Okay. So we will not make any assumptions right now. Just the velocity of the bullet is given. It is fired into a log of wood. That means
एक लकड़ी का मोटा तख्ता रखा हुआ है, a thick block of wood is there, and a bullet is coming towards this block with a velocity of 250 meter per second. The bullet penetrates to a depth of 40 centimeter. What is the meaning of this? It penetrates to a depth of 40 centimeter. Can I say that once the bullet hits the point, the front face of the wooden log, then it will go inside the wooden log, and after penetrating to a distance of, let us say, 40 centimeter, it will stop. Is this the meaning? Am I right, or do you interpret it as something else? Yes, sir. सही बोला ना? तो 40 सेंटीमीटर तक ये वुड के अंदर जाकर के धस करके रुक गया, यानी कि अब ये बुलेट यहां पर आकर के स्टॉप हो गई है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. सो फ्रॉम what you have read up till now, ये लाइन पूरी पढ़ी, यहां से लेके यहां तक पढ़ी. So now you have one specific information with you. What I am going to take the information, in which format I am going to take this information? I will say that the initial velocity of the bullet u is 250 meter per second. So u will be 250 meter per second. After 40 centimeter, the bullet came to rest. So the final velocity, wherever it came to rest, is 0 meter per second. And the penetration depth, S, is equal to, now I will not write it as 40 centimeter. See, whenever you take down the given data, you should always make it a point to take the data and convert it into the desirable SI units. So since the unit of centimeter is not in SI units, what should I write S as? Distance को कितना लिखना चाहिए 40 सेंटीमीटर को? बोलो. 0.40. 0.4 Yes, sir. meters. We want the unit to be meters, not centimeters. Okay. So S is there, U is there, V is there. Okay, let us proceed and see what is desired here. If the bullet moving with the same velocity is fired into a similar piece of wood 20 centimeter thick. See, now the scenario is changed. Now they have changed the log, and instead of a thick block, they have taken a thinner block whose total thickness is only 20 centimeter. Now please note that the bullet had the capability to penetrate up to 40 centimeters, and then only it stopped. And if you take a wooden block which is only 20 centimeters thick, then it is very easy to imagine that the bullet will strike the front face, it will penetrate through the log, and then it will come out of the other end with some final velocity. So it will not come to rest if you take a block of thickness only 20 centimeters. So this is a second case. This was the first case that we are considering, and now the problem setter is giving you a second case. And in the second case also, the initial velocity of the bullet remains the same. See, if the bullet moving with the same velocity is fired into a similar piece of wood 20 centimeter thick, with what velocity would it emerge from the other end? Take the resistance to be uniform in both cases. Now see, resistance is a force, okay? But in the case of kinematics, you have to see if this question comes up, there is no way of directly knowing whether this is a problem of kinematics or kinetics. तो काइनेटिक्स की प्रॉब्लम के अंदर तो अपन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है. लेकिन अब आप एक चीज और आपको बता देता हूँ. देयर वाज अ प्रीवियस फॉर्मेट ऑफ योर आरटीयू पेपर्स अकॉर्डिंग टू व्हिच द क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स. तो उसमें पेपर पे ही लिखा होता था यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरीके से.
तो अभी यूनिट 3 के अंदर का कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो यूनिट 3 के सिलेबस में से ही पूछा जाएगा। तो आपको पता था कि भाई ये कौन सा केस है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। बट नाउ द फॉर्मेट ऑफ द आरटीयू पेपर्स हैज कंप्लीटली चेंज्ड। Now there is no unit wise bifurcation of your question paper. Now questions are jumbled up. तो ये क्वेश्चन अगर आपको, अभी मैं काइनेमेटिक्स के टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें इंपल्स मोमेंटम वाले में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, वर्क और एनर्जी के जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो फर्स्ट रीडिंग में तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, इसमें मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाऊं या काइनेमेटिक्स की फॉर्मूले लगाऊं। तो कैसे पहचाने कैसे अपन कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सी द ट्रिक टू अंडरस्टैंडिंग दिस इज टू सी व्हाट इज आस्क्ड ऑफ यू। आपसे वेलोसिटी पूछी गई है कि किस वेलोसिटी से इमर्ज हुई है, और फोर्सेस का इंटरेक्शन, कोई फ्रिक्शन, किसी तरह की बात, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी नहीं दिया गया। सारी बातें देखो किन किन चीजों के अंदर बातें चल रही हैं अपनी, इस चीज पे ध्यान दो। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन डिस्टेंस दे रखा है, सेकेंड केस में भी डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन 20 सेंटीमीटर का थिकनेस दे रखा है, और सिर्फ एक इतनी सी बात कर रखी है कि रेजिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है वुडन ब्लॉक का। And the question that is asked is, what is the velocity? They are not asking you the amount of resistance offered by the wood. No. If it were asked of you कि resistance बताओ, तब ये kinetics का question हो जाता, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है वो, velocity पूछ रहा है। तो अब आप ये पहचान सकते हो कि ये kinematics का question है। तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि आप पहचान सकते हो कि ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि फिर उसके बाद ये पता लगाया जा सके कि अच्छा, अगर काइनेमैटिक्स के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब है कि ये वाले फॉर्मूले लगेंगे जो काइनेमैटिक्स के हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगेगा। लेकिन इन केसेस में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या। अब ये हिंट कहां से मिला आपको? These guys have told you that take the resistance to be uniform. So if the resistance offered by the wooden block to the penetration of the bullet is uniform, then you can simply assume that the retardation of the bullet, देखो acceleration एक टर्म होती है और रिटार्डेशन एक दूसरी टर्म होती है, और मैं मानता हूं कि आपको पता होगा कि रिटार्डेशन इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। So if acceleration causes the velocity to increase, then retardation will cause, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों में जो रिटार्डेशन है वो सेम है, एंड इट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन का क्वेश्चन है ये। So if it is a question of constant retardation, then we can rest assured that we can use these formulae. तो अब ये फॉर्मूले अपन कॉन्फिडेंस से यूज कर सकते हैं। v is equal to u plus 80, v square minus u square is equal to 2as, and s is equal to ut plus half 80 square. अब अपन को इन तीनों फॉर्मूले को यूज करने की परमिशन तो है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कहां पर यूज होगा अप्रोप्रिएटली। ठीक है, अपन आगे पढ़ते हैं। केस नंबर 1 अपन ने बना लिया था। दिस इज केस नंबर 1 वेयर u v एंड s आर गिवन। केस नंबर 2 के अंदर क्या बोलता है वो, u तो सेम ही है, वही 250 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बुलेट को छोड़ा गया। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं कितनी है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का वुडन ब्लॉक लिया गया था, और इसमें से बाहर कुछ वेलोसिटी से बुलेट बाहर जरूर आएगी, लेकिन कितनी वेलोसिटी से आ रही है वो खुद ही क्वेश्चन है। v कितना है ये पता करना है, ठीक है। लेकिन इस केस में डेप्थ या फिर थिकनेस ऑफ ब्लॉक 20 दे रखी है, तो सेकेंड वाले केस में s इज इक्वल टू 0.2 मीटर हो गया। अब आप मेरे को अवेलेबल सेट ऑफ फॉर्मूले देखो, और
अपना दिमाग लगा करके मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए इसमें। You guys tell me, decide which formula is suitable. सेकंड वन थर्ड वाला। थर्ड वाला यूज करेंगे क्या? थर्ड वाले में आपको टाइम पता है क्या? आपको क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है क्या कहीं पर भी? लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल मी कि 250 मीटर पर सेकंड पे बुलेट आई, 40 मीटर पे आके रुकी, कितने देर में रुकी, ये बोला है क्या? अब देखो ये No, प्रैक्टिस sir. हो रही है आपकी। अगर आप लोगों का कहना था कि थर्ड इक्वेशन को यूज करें, तो थर्ड इक्वेशन में आपको क्या वेलोसिटी मिलेगी? क्या फाइनल वेलोसिटी इसमें कहीं दिख रही है थर्ड इक्वेशन में? सेकंड वाला। सेकेंड वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज द करेक्ट चॉइस। सेकेंड वाले इक्वेशन में देखो, फाइनल वेलोसिटी v बैठी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी u बैठा हुआ है, एक्सेलरेशन बैठा है, डिस्टेंस बैठा है, इसमें कहीं टाइम का मेंशन नहीं है। सो इट इज अप्रोप्रिएट टू ट्राई द सेकेंड इक्वेशन, नॉट इवन द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में भी टाइम बैठी हुई है, ठीक है? तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को पहले फर्स्ट केस पे लगाओ। अप्लाई दिस इक्वेशन ऑन केस नंबर 1। क्या इसमें v मिला हुआ है क्या? डू यू नो v? v इज 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 250, तो माइनस 250 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस पता है क्या? यस, 0.4 मीटर्स, तो इनटू 0.4। सो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 to the case number 1, you get this equation, and from this equation what quantity will you get eventually? इससे एक्सेलरेशन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यस सर। और एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? नेगेटिव। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको अपन कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है? सो एवरीथिंग इज गोइंग एज एक्सपेक्टेड, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब आपको एक्सेलरेशन भी पता लग गई है, ठीक है? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेट अस से दैट वी नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ये पता है। अब मेरे को बताओ कि सेकंड वाले केस में ये जो अननोन वेलोसिटी है, इसको निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? सेकंड इक्वेशन। सेकंड। You apply the second equation again, that is the correct answer। क्योंकि अब देखो सेकंड वाले केस में भी टाइम का कोई कॉन्सेप्ट अपने पास नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं यूज होगी, सेकंड नहीं यूज होगी, वापस से सेकंड इक्वेशन यूज करो। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 250 पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस 0.2 मीटर पता है, ये देख लो। तो अब आपको u स्क्वायर पता है, 2 पता है, a पता है, s पता है, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है? तो दिस वाज द क्वेश्चन, और इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। आई विल नॉट गो टू द फाइनल आंसर एंड ऑल, लेकिन ये आपको समझ में आ गया क्या कि अपन ने कैसे किया है और क्यों किया है क्वेश्चन को? अब आप लोग अपने आप इसको सॉल्व करना, और ये जो सॉल्यूशन इसमें पूरा दिया हुआ है, you will get the answers here. Compare your answers and find out whether you have found the correct thing or not. ठीक है? Now, let us go to the next question. A body is moving with uniform acceleration and covers 15 meter in 5th second and 25 meters in 10th second. अब देखो ये टोटली डिफरेंट कहानी दे रहा है, ठीक है? ये nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड की प्रॉब्लम आ गई, और जैसा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला दे रखा है nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, एक इक्वेशन याद करने के लिए दिया हुआ है, ये रहा। सो देयर इज वन इजी वे आउट, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो अगर 5th सेकंड के डिस्टेंस की बात की जा रही है तो n की जगह पे 5 रख दो, अगर 10th सेकंड के डिस्टेंस की बात की जा रही है तो n की जगह 10 रख दो। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड दे देगा। बट
इफ बाय चांस यू फॉरगेट दिस फॉर्मूला तो क्या करोगे? ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा वो आपको अभी मैं बता देता हूं। ये सिंपल प्रॉब्लम है, ये पहले वाली प्रॉब्लम से भी ज्यादा सिंपल है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। लेट अस सी व्हाट हैज टू बी डन इफ यू डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर nth सेकेंड। ठीक है, मेरे को इतना पता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 5 seconds माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4 seconds। देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकेंड अलग है और डिस्टेंस कवर्ड इन 5 seconds अलग है। ठीक है, ये समझने की बात है। ये 5th सेकेंड में डिस्टेंस का मतलब है 4th सेकेंड खत्म हुआ और 4th से लेकर के 5th सेकेंड के खत्म होने तक जो 1 सेकेंड का अंतरकाल है उसके अंदर 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई। तो उसको निकालने का तरीका है कि पूरे 5 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालो। वो कैसे निकलेगी? यूज दिस फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें t की जगह पे 5 रखो, तो s इन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 seconds विल बी 5u प्लस हाफ a इंटू 5 स्क्वायर माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4 seconds कैसे निकलेगी? अब इसमें टाइम की जगह पर 4 रखो, तो ये हो जाएगा 4u प्लस हाफ a इंटू 4 का स्क्वायर। ये आएगी आपकी डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। तो ये इतना आसान है। ये इसमें आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर को 2 बार अप्लाई करना है। एक बार टाइम को 5 सेकेंड रखो, एक बार टाइम को 4 सेकेंड रखो, इन दोनों को माइनस करो तो जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड आएगी। अब उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड कितनी होगी, तो सिंपल है, टोटल डिस्टेंस इन 10 seconds माइनस टोटल डिस्टेंस इन 9 seconds। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 10u प्लस हाफ a इंटू 10 स्क्वायर माइनस 9u प्लस हाफ a इंटू 9 स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। तो अब क्या, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा? जरा थोड़ा सा हेल्प करो आप मेरी। इस वाले को सॉल्व कर रहा हूं मैं S5 को, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है वो थोड़ी सी हेल्प करे। 5u माइनस 4u तो u हो गया, और हाफ a इंटू 25, ये तो हो जाएगा हाफ a इंटू 25, या फिर इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखें 25/2a, और ये क्या हो जाएगा 16/2a। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इट शुड कम 9a/2। 9a/2। ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। एक इक्वेशन बन गई। डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड कितना हो जाएगा? इसी तरीके से माइनस करके बताओ। डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड विल बी u प्लस, अच्छा ये तो हो जाएगा 100/2a, और ये हो 19a/2। जाएगा 81/2a। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19/2a हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। ये आ गए 2। अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही लगते हैं ये सारे फॉर्मूले जो अपन लगा रहे हैं। 15 मीटर्स कवर करता है 5th सेकेंड में, तो क्या मैं यहां पर S5 को 15 लिख दूं क्या? यस सर। और आगे चलें 25 मीटर्स इन 10th सेकेंड, तो ये वाली जो चीज है ये 25 मीटर हो गई। क्या पूछ रहा है ये? फाइंड
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी यानी कि u कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी a कितना है। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को, u प्लस 9/2a 15 है, u प्लस 19/2a 25 है। क्या इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है क्या आपको, ये बताओ पहले तो। कैन यू फाइंड u एंड a फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस? यस सर। पहली इक्वेशन बोलती है Yes, sir. u प्लस 9/2a इज इक्वल टू 15। दूसरी इक्वेशन बोलती है u प्लस 19/2a इक्वल टू 25। जिन लोगों को नहीं आता, आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये सब आपको बहुत पहले से आना चाहिए। दो अननोन है u और a और दो इक्वेशन है, तो इसका मतलब अपन को आराम से मिल जाएगा। आई विल नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Subtracting equation number 1 from 2, we get 2 में से 1 को माइनस किया तो क्या आया, 10/2a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो a कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अब a मिल गया है, अब इस a को ले जा करके किसी में भी रख दो, या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, आपको u मिल जाएगी। बस काम ही खत्म। ठीक है, अब समझ में आ गया साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर यस सर। So this is a very simple question. Let us go to the next question. ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि आपके ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। Whenever, देखो ये प्रॉब्लम्स भी आप बहुत सारे सॉल्व कर चुके हो, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। एक टावर है, उस टावर पर से एक पत्थर को नीचे ड्रॉप किया, उस पत्थर को जमीन पे आने में कितना टाइम लगेगा अगर उस टावर की हाइट h है तो इस केस में क्या करते हो आप, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये g क्या हुआ, व्हाट इज g? Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. And what is the constant value that you use for g? 9.8 So 9.8 meters per second. ये याद रखना है। कई जने क्या करते हैं, इसको 10 ले लेते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कतई नहीं लेना है। जब आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू पता है, यू शुड ऑलवेज टेक इट एज 9.81। ये मैंने इवन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी ये मिस्टेक करते हुए देखा है। पता नहीं कब उनकी ये प्रैक्टिस चेंज हो जाती है, स्कूल में पढ़ाया है या कॉलेज में किसी टीचर ने पढ़ा दिया। दे मेक इट अ पॉइंट टू टेक जी एस 10। दैट इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। आप लोग ऐसा कतई ना करें। रिमेंबर योर जी इज ऑलवेज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रटना है आपको। तो जब भी फ्री फॉल की प्रॉब्लम्स होती है, आपका इक्वेशन तो वही यूज हो रहा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। द ओनली डिफरेंस इन द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेविटी is that you have to replace this constant acceleration with the acceleration due to gravity g. That's all. ठीक है, तो इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स आपने पढ़ी है। इवन आईआईटी लेवल की प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे कि एक टावर से गोली चलाई, फिर वो क्या कहते हैं, गोली एक 2 मीटर नीचे बैठे बर्ड पे लग रही है तो कितना टाइम लग रहा है। एंड अदर प्रॉब्लम्स लाइक टावर की प्रॉब्लम्स बहुत आती है कि टावर के नीचे से एक बॉल ऊपर फेंकी गई और टावर से एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया गया, ये दोनों किस पॉइंट पे मिलेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत सारी अवेलेबल है। आप अपने फिजिक्स के टेक्स्ट बुक्स खोल के देखो। इवन आई हैव इंक्लूडेड सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम भावी कट्टी। ये सारी जो भावी कट्टी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने आपके लिए सजेस्ट कर दिया है। 11.1 to 11.18 पूरी 18 प्रॉब्लम्स। क्योंकि अपन अभी बेसिकली देखो जो पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो,
ये सारी इन 3 इक्वेशंस पे आधारित है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इन तीनों पे आधारित ये जो क्वेश्चंस हैं 11.1 से 11.18, इसमें वेरिंग अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी है। इन क्वेश्चंस में भाभी कट्टी के इन क्वेश्चंस में एक आधा क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखे विच कैन इजीली क्वालिफाई फॉर आईआईटी लेवल क्वेश्चंस, लेकिन चूंकि ये सब आप स्कूल में पढ़ चुके हो तो इसलिए मैंने ये सारे प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। और आपके एग्जाम में कोई भी कितने भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब आप स्कूल लेवल से जब कॉलेज लेवल में पढ़ रहे हो तो एक आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन भी अगर आपको दे दिया जाए तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, और अपन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। आज जितने प्रॉब्लम अपन यहाँ पे अभी डिस्कस कर पा रहे हैं उतने कर लेंगे, बाकी मैं आपको करने के लिए खुद ही छोड़ दूंगा। ठीक है, यू हैव टू स्टडी इट ऑन योर ओन। बट एनीवे, आई विल टेक वन क्वेश्चन फॉर ग्रेविटी और इसको जरा डिस्कस कर देते हैं। अ स्टोन ड्रॉप्ड इनटू अ वेल इज हर्ड टू स्ट्राइक द वाटर आफ्टर 4 seconds। ठीक है, find the depth of well if the velocity of sound is 350 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि एक कुआं है, उस कुएं में किसी ने एक पत्थर ऊपर से नीचे को सिर्फ ड्रॉप किया। जब भी ड्रॉप का केस होता है यू हैव टू टेक योर इनिशियल वेलोसिटी एज हाउ मच, कितना लेना पड़ता है इनिशियल वेलोसिटी? 0 अगर ड्रॉप कर रहा है तो। और अगर ड्रॉप का केस नहीं है, थ्रो का केस है, तो फिर आपको थ्रोइंग वेलोसिटी दे जाएगी, तो यू उसको वो लेना है। ठीक है, और कभी भी कोई चीज अगर ऊपर को प्रोजेक्ट की जाती है देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव जी, और अगर कोई चीज ऊपर से नीचे को थ्रो करी जाती है या ड्रॉप करी जाती है देन द एक्सेलरेशन हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव जी। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इतना सा ट्रिक है ग्रेविटी की प्रॉब्लम्स में। बाकी वही सेम 3 इक्वेशंस यूज होगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह पे u प्लस जी टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की बजाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बजाय s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बस इतनी सी 2-3 ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। स्टोन को ड्रॉप किया गया वेल में, फिर बोला कि 4 सेकंड बाद उसके गिरने की आवाज आई। तो अब इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपको ये बताना है कि ये पता करो कि कुएं की गहराई कितनी है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, द कांस्टेंट स्पीड ऑफ साउंड इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट इन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये दे रखा है इन्होंने 350 मीटर पर सेकंड की गति से आवाज ट्रेवल करती है, और आवाज एक्सेलरेट नहीं करती, आवाज की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब ये बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ वेल बताओ। अब इसमें एक ट्रिक क्या है, ट्रिक कह लो या फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये कुआं है आपका, दिस इज द ग्राउंड लेवल। यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, तो स्टोन ग्रेविटी के अंडर में ड्रॉप होगी। लेट अस से दैट द हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ द वेल इज h। ठीक है, अब t1 सेकेंड्स तो लगे उसको नीचे पहुंचने में। जैसे ही उसने यहां पर टच किया आवाज पैदा हुई, और उसके बाद आवाज ऊपर आई आप तक। तो इसमें 2 मोशंस इन्वॉल्व हैं। पहला मोशन तो है कि स्टोन नीचे जा रहा है, तब तो कोई आवाज नहीं आएगी। आवाज कब आएगी? जब स्टोन जाकर के सरफेस से टच होगी, तब तो आवाज जनरेट होगी, और जनरेट होने के बाद आवाज फिर ऊपर आएगी। तो उसमें लगे लेटस से t2 सेकेंड्स। अब ये बोलता है, तो सर पानी के लगे आएगी आवाज? हाँ क्या बोल रहे हो? सर पानी के टच होगा वो तो भी तो आवाज आएगी ना। तो आवाज ऊपर तक आने में भी तो टाइम लगेगा भैया। जैसे टच हो गई, टेलीपैथी से थोड़ी आवाज ऊपर आ रही है।
आवाज की वेलोसिटी दे रखी है तो आवाज ट्रेवल भी तो करेगी, नहीं करेगी? जैसे यहां से 5 किलोमीटर दूर है, आपने एक सोनिक बूम भेजा यहां से, तो क्या जैसे ही यहां से आवाज क्रिएट हुई 5 किलोमीटर दूर आवाज पहुंच जाती है क्या? बिजली कड़कने की, नहीं। भाई लाइटनिंग स्ट्राइक की बात आपने सबने पढ़ी हुई है। जब बिजली कड़कती है तो पहले बिजली दिखती है, फिर बाद में आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आवाज को ट्रेवल करने में भी तो टाइम लगता है, समझ रहे हो? तो जैसे ही कुएं के अंदर पत्थर जाकर के स्ट्राइक किया, आपको इमीडिएटली तब नहीं सुनाई देगी आवाज। एक छोटा सा टाइम गैप होगा जिसमें कि स्ट्राइक जहां हुई वहां पे आवाज पैदा हुई, और फिर वो ऊपर चढ़ेगी कुएं में, वो आवाज पूरी कुएं की डिस्टेंस h ट्रेवल करके आपके कान तक पहुंचेगी, तब जाके आवाज आपको सुनाई देगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अब ये कॉन्सेप्ट आपको? यस सर। अब अपन को क्या करना है, ये बोल रहा है कि पत्थर को जब डाला गया, छोड़ने के 4 सेकंड बाद आवाज सुनाई दी। तो अब अपन को ये देखना है कि यहां से जब उसने छोड़ा, उसके बाद घड़ी में 4 सेकंड गिने तब जाकर के आवाज आई। तो ये आवाज जो 4 सेकंड्स आई है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 सेकंड्स मस्ट बी द सम ऑफ T1 एंड T2? यही होना चाहिए। 4 सेकंड इज नॉट द टाइम T1। 4 सेकंड क्या है? कितना टाइम पत्थर को नीचे जाने में लगा और पत्थर के टच होने के बाद आवाज को ऊपर आने में जो टाइम लगा, इन दोनों को मिलाकर के मैं कहूंगा कि 4 सेकंड का टाइम लगा। इज दिस राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Right, sir. ठीक है। अब चूंकि मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं तो ये s यहां से हटा देता हूं और सीधे सीधे लिख देता हूं, वन इक्वेशन आई नो दैट 4 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। दिस इज वन इक्वेशन दैट वी नो नाउ। अब ये पूछ रहा है कि h कितना है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन्होंने दे रखी है 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो, अगर h हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ वेल है, क्या मैं ये कह सकता हूं डेप्थ ऑफ वेल डिवाइडेड बाय 350 मीटर पर सेकेंड द वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू T2? ये सही है क्या बताओ? क्यों? Yes, sir. क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज ट्रेवल कर रही है और आपको डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप पता करना हो, तो सिंपली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज टाइम। यही कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो T2 तो मुझे पता है कि इट इज h अपॉन 350। ये एक और चीज पता लग गई, तो दूसरी इक्वेशन मिल गई अपने को। अब T1 का क्या रिलेशनशिप है? ये जो ट्रेवल हो रहा है नीचे को, ये एक्सेलरेशन के अंडर में ट्रेवल हो रहा है। इस ट्रेवल में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, और कौन सी एक्सेलरेशन है ये? स्मॉल जी। दिस एक्सेलरेशन इज स्मॉल g। तो क्या मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड h बाय द स्टोन मस्ट बी इक्वल टू 0 इंटू T1 प्लस हाफ g T1 स्क्वायर। ये सही है क्या, बता दो? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया मैंने, चूंकि स्टोन को ड्रॉप किया गया u हो गया 0, और चूंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी का है तो स्मॉल g। तो स्टोन के नीचे जाने का जो टाइम है कुएं के अंदर, वो h इज इक्वल टू 0 T1 प्लस हाफ g T1 स्क्वायर है। इज दिस करेक्ट और नॉट? करेक्ट सर। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। आई विल राइट इट एज h इज इक्वल टू हाफ g T1 स्क्वायर। ठीक है। अब मैं देखूं मेरे पास कितनी इक्वेशंस आ गई। T1 प्लस T2 इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन। h अपॉन 350 इज इक्वल टू T2, दूसरी इक्वेशन। h इज इक्वल टू हाफ g T1 स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन। अब मेरे को जरा बताओ, इन तीनों इक्वेशंस में, ये देखो बॉक्स इक्वेशंस दिख रही है आपको, इन तीनों इक्वेशंस में टोटल अननोन्स कितने हैं?
3 3 अननोन है, T1 नहीं पता, T2 नहीं पता, H नहीं पता। इक्वेशंस कितने हैं आपके पास? 3, ठीक है। तो 3 अननोन और 3 इक्वेशंस। अब इसको अपने आप सॉल्व करो, क्योंकि इससे आगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, ना ट्रिग्नोमेट्री है, ना अरिथमेटिक्स है, सिंपल लॉजिक है। यू हैव गॉट 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स, और तीनों अननोन पता भी नहीं करने, आपको H पता करना है। तो किसी भी तरीके से आप अपना दिमाग यूज करो और H निकालो इन 3 इक्वेशंस से। नाउ दिस टास्क इज लेफ्ट टू यू। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स was already over when you developed the 3 equations. 3 equations को डेवलप करने में आपकी मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगा, अब इसको सॉल्व करना आपके हाथ में है। और अगर आपको नहीं आता सॉल्व करना, लुक एट द सॉल्यूशन नाउ, नाउ यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक लेवल का है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन योर मिड टर्म एग्जाम्स और योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। अब देखो, अब अपन ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो जैसे ही एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट आ गया, तो अब आप अपने वो पुराने जो फॉर्मूले थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी, वो वाले जो फॉर्मूले थे उनको भूल जाओ। अब आपको टोटली डिफरेंट गणित यूज करनी पड़ेगी। क्या बोलता है? लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स आसान होती है बहुत, अभी आपको देख के पता लग जाएगा। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन दे दी, सो डिस्टेंस इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हियर। डिस्टेंस इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को देख के घबराना मत, बल्कि ऐसी चीज दिख जाए तो खुशी मनाना, क्योंकि ये आसान होती है। अभी अपन ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की उससे कई गुना आसान है ये प्रॉब्लम। सो लेट अस सी, एस इज द टोटल डिस्टेंस एंड टी इज इन सेकेंड्स। क्या बोलता है? फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब एट टी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये बहुत ही आसान है, एक बार मैं इसको कॉपी कर लूं, एक सेकंड रुक जाओ, let me copy it down। S is equal to 18t plus 3t square minus 2t cube। ओके, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट स्टार्ट पूछ रहा है अपने से, दिख रहा नहीं है? हैं? अब दिख गया ना, ये देखो। यस सर। वेलोसिटी क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस होता है। तो फटाक से अब इसको डिफरेंशिएट करो, 18t plus 3t square minus 2t cube को डिफरेंशिएट करो। 18 plus 6 minus 6t square। सही है, ये हो गया आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टाइम है। तो अब एक्सेलरेशन क्या करना है? जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है उसको फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दो। ये देखो डिस्टेंस क्या आ रहा है बताओ, एक्सेलरेशन 6 minus 12। सही है क्या? ये 3 एक्सप्रेशन आ गए आपके पास सीधे सीधे, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। अब क्या पूछ रहा है ये? फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट स्टार्ट t इज इक्वल टू 0 पे। क्या करोगे बताओ? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ रहा है एट t इक्वल टू 0। सिंपल है कि नहीं है? क्या करने का है? t इक्वल टू 0 पुट कर दो इनके एक्सप्रेशन में, v के एक्सप्रेशन में t को 0 पुट करो, कितना आ रहा है बताओ? 18 एट t इक्वल टू 0 कितना है? 18 मीटर पर सेकेंड। आंसर खत्म। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर खत्म। आसान है कि नहीं? इजंट इट वेरी सिंपल? अब ये क्या पूछ रहा है? अब देखो छोटा सा एक डिफिकल्ट पार्ट, अगर कहो तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वैसे। द टाइम व्हेन द पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी।
इसमें क्या करोगे जरा सोच के बताओ। एक हिंट देता हूं, रिमेंबर योर लेसन्स इन स्कूल रिगार्डिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या करोगे बताओ। ये पूछ रहा है कि पार्टिकल जब मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करेगा कितने टाइम में करेगा। ओके, इफ यू आर अनेबल टू डू, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है? 18 + 60 - 60²। अब अगर कोई सी भी चीज मैक्सिमा रीच कर रही है, मैक्सिमम रीच कर रही है, और अगर ये पता करना है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, व्हाट डू? You take the first derivative of that entity and put it equal to 0. This is how you find maxima or minima. याद आया कि नहीं आया कुछ आपको? Yes, sir. मैक्सिमम और मिनिमम। तो आपको बस इतना ही करना है इस टाइप की क्वेश्चन में। अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी पूछा जाए, तो आपको वेलोसिटी का मैक्सिमम पूछा है तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन उठाओ और उसको एक बार टाइम से डिफरेंशिएट करो और उस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर पुट करो और उससे फिर टाइम निकालो। चलो, अब वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टाइम कितना था बताओ, इसी एक्सप्रेशन से बताओ डिफरेंशिएट करके। 6 - 12t, इसको इक्वल टू 0 पुट करो और इससे पता करो टाइम कितना आया। 0.5 आया कि नहीं आया? 1/2. This is your answer. So Yes. at time t is equal to 0.5 seconds, the object or the particle will reach maximum velocity. तो ये आपका आंसर हो गया, V max at t is equal to 0.5 seconds. आंसर। बस इतना सा काम करना था। आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि अच्छा, अब अगर मैक्सिमम वेलोसिटी रीच हो गई है तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी है कितनी? व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? क्या करोगे बताओ। टी की वैल्यू रख देंगे वी वाली एक्सप्रेशन में। वेरी गुड, बस इतना सा ही काम करना है भाई। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो आपको ऑलरेडी पता ही है, और आपको अब ये पता लग गया कि जब t 0.5 सेकेंड होगा तो v की मैक्सिमम वैल्यू बनती है। तो इसमें t जहां जहां भी दिख रहा है इन जगहों पे t की वैल्यू 0.5 रख दो तो v की मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और आपने सॉल्व कर लिया जिसमें कि डिफरेंशियल कैलकुलस लगती है आपकी along with other कॉन्सेप्ट्स। अब इसको देख लेना, नेक्स्ट वाले टाइप की क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अच्छा ये बताओ, आपका अभी कोई लेक्चर है क्या इसके बाद? नो सर। तो अगर अपन 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ ले तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्योंकि अगर आप लोगों को मंजूर नहीं है तो मैं तो स्टॉप कर दूंगा अभी लेक्चर, देन यू विल स्टडी द रेस्ट ऑफ द टॉपिक योरसेल्फ। क्योंकि अगली क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। बट इफ यू कैन स्टे विथ मी फॉर 10 एक्स्ट्रा मिनट्स देन मे बी वी कैन कवर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर। इस न्यूमेरिकल्स में जल्दी जल्दी करा देंगे, ठीक है? डू यू एग्री और नॉट? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इस प्रॉब्लम को देखो वापस से, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है क्योंकि इन्होंने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी गिवन बाय इक्वेशन दिस। अब ये क्या बोल रहा है? v is in meter per second, t is in second। ठीक है, when t is equal to 2 seconds the particle is found to be at a distance of 10 meter। तो यहां पर ये वेलोसिटी नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि s is equal to 10 meter
एट टी इज इक्वल टू 2, लेकिन s का एक्सप्रेशन आपके पास है नहीं, आपके पास किसका एक्सप्रेशन है? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। कोई बात नहीं, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 6 सेकेंड्स, यानी कि एक्सेलरेशन कितनी होगी 6 सेकंड बाद और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 6 सेकंड बाद। तो अभी डिस्प्लेसमेंट तो बाद में करेंगे, पहले मेरे को ये बताओ क्या एक्सेलरेशन 6 सेकंड बाद आप निकाल सकते हो क्या? यस सर। क्या करोगे? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। तो करो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट एक बार, एक्सेलरेशन कितना आया? 6t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 माइनस 2। अब इस एक्सप्रेशन में t की वैल्यू कितनी रखनी है? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो t की वैल्यू 6 रख दो, आपको एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही था जो अपन ने अभी पहले सॉल्व किया है। अब थोड़ा सा डिफरेंस कहां आ रहा है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। वेलोसिटी इज गिवन एज 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। ओके, नाउ प्लीज सी द स्क्रीन। अब ये मेरे से पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है s कितना होगा एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। सर v का इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्ट। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बन गया। आप पहले डिफरेंशिएट कर रहे थे, नाउ यू हैव टू डू द रिवर्स थिंग, यू हैव टू इंटीग्रेट। वी नो दैट v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो ये जो ds अपॉन dt है वो है ये चीज, क्या? 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। Now what I will do is I will write it as ds is equal to 2t cube minus t square minus 2t plus 4 times dt। अब इसको t dt को t के ग्रुप के पास में ले आया मैं, and now I will integrate it। Integral of ds is equal to integral of the right hand side। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ गया s इक्वल टू, अब जल्दी से बताओ इसका इंटीग्रेशन करके मेरे को, 2 इंटू टी रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सही किया है क्या मैंने इंटीग्रेशन? देख लो। यस सर। ठीक है, अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे एलिमिनेट की जाए। उसके लिए आपको एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है, s is 10 at t is equal to 2। तो क्या करोगे, इन सारे पॉइंट्स पे t इक्वल टू 2 रखो। तो s की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, आफ्टर पुटिंग t इक्वल टू 2 एंड s इक्वल टू 10, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, c की वैल्यू मिल गई, फिर उसके बाद आपको पता करना है कि s कितना होगा एट t इक्वल टू 6। अब क्या करोगे, s पता करना है, c पता है, तो अब जो है t को 6 रखोगे और उससे आपको s पता लग जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस सर। ठीक है, अब आप इसको रीड कर लेना, अब आपको समझ में आ जाएगा। And now we will come to the last question। ग्राफिकल टाइप का क्वेश्चन है। Vehicle starts from rest with a linear motion and comes to rest after 25 seconds। ठीक है, तो पूरा 0 से लेकर के 25 सेकंड तक की इसकी ट्रैवल हिस्ट्री को वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो, वेलोसिटी अगर टाइम के साथ बढ़ रही है तो यहां पर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। यहां पर फिर बढ़ रही है, लेकिन इसका स्लोप चेंज हो गया, तो यहां पर भी एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन दूसरी रेट से हो रहा है। सो दिस इज फेस ऑफ एक्सेलरेशन 1, फेस ऑफ एक्सेलरेशन 2।
and now from this point onwards velocity is decreasing with respect to time. तो यहां पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, और रिटार्डेशन बेसिकली क्या होता है, एक तरह का एक्सेलरेशन ही होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो यू कैन यूज इट एज a3। तो 3 डिफरेंट एक्सेलरेशन से बॉडी चल रही है 25 सेकंड के अंदर, और 25 सेकंड में पता नहीं कहां पहुंच गई। लेकिन अब ये बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। अब देखो, द एरिया कवर्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट, बताओ आप। इट गिव्स यू डिस्टेंस। कैसे पता लगा मेरे को भाई? एरिया निकालने का मतलब है दोनों आप एक्सिस को मल्टीप्लाई करो। एरिया अंडर y एंड x एक्सिस इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ y इंटू एक्स। y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या है, टाइम। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम? इट इज ऑलवेज डिस्टेंस। तो अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछता है तो इसका ट्रिक है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको कोई एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देता है तो आप क्या करोगे? इसका एरिया क्या मिलेगा आपको? What is the area under acceleration versus time graph? Velocity. It is velocity. क्योंकि आप एक्सेलरेशन और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेलोसिटी देता है वो, ठीक है। डिस्टेंस पता करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया निकालना है। अब देखो, आपको ये सारी वैल्यूज पता है, ये 10 है, ये 20 है, तो ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। इसको आप चाहो तो यहां डिवाइड कर लो, ऐसे काट लो। अब इस ट्राइंगल का एरिया पता लग जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया पता लग जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया पता लग जाएगा। सो फाइंड द एरियाज इंडिविजुअली एंड ऐड देम अप, दैट विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। 500 मीटर। 425 मीटर्स है इसका आंसर। चेक योर आंसर, एक बार और वापस से अच्छी तरह से करके देखो, कहीं मिस्टेक किया आपने। 425 करेक्ट आंसर है, मैंने करके देख लिया है, ठीक है। एंड नाउ लेट अस क्विकली कवर दीज 2 प्रॉब्लम्स आल्सो। इसमें सिर्फ मैं आपको छोटा सा हिंट दे करके छोड़ दूंगा। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम, ठीक है। अ टीनेजर पुट्स हर बाइसाइकिल ऑन इट्स बैक, मतलब अपने पीठ पे नहीं लिया उसने बाइसाइकिल को उल्टा जमीन पे रख दिया जिससे कि टायर ऊपर आ गए। एंड नाउ द टीनेजर स्टार्ट्स स्पिनिंग द रियर व्हील फ्रॉम रेस्ट टू अ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 250 आरपीएम इन 5 सेकेंड। के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आपको कंफ्यूज वो लोग सिर्फ इस चीज को लेकर ही कर सकते हैं। दे विल गिव यू एन आरपीएम, दे विल इंटेंशनली अवॉइड गिविंग यू रेडियन पर सेकेंड। लेकिन आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि भाई आपके ये जो 3 फॉर्मूले हैं एंगुलर वेलोसिटी को लेकर के, जो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, पहले इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से बनाया हुआ, एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as से बनाया हुआ, एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से बनाया हुआ। All these 3 equations are applicable only when alpha is constant. But the thing is, they will not give you omega in radian per second. They simply give you RPM, n in RPM. तो अब आपको बस अप्लाई तो यही तीनों फॉर्मूले करने हैं, इसमें और कुछ भी नया नहीं है। बस इसमें ट्रिक इतनी है कि अगर मैं आपको कहूं
कि रोटेशन की वेलोसिटी 250 आरपीएम है, तो ओमेगा कितनी है आप बता दो मुझे। व्हाट इज योर ओमेगा व्हेन n इज इक्वल टू 250 आरपीएम? बताओ। 2 पाई n। यस, 2 पाई n बाई 60। 2 पाई dn नहीं आएगा, 2 पाई dn से तो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। आपको ओमेगा चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n बाय 60। ये फॉर्मूला बिल्कुल नींद में भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ आरपीएम इनटू रेडियन पर सेकेंड। तो अब बस यही ट्रिक है, यू पुट योर n as 250 here, so omega will be 2 pi into 250 divided by 60 रेडियन पर सेकेंड। अब ये जो कैलकुलेशन करके निकाला है, ये आपकी फाइनल ओमेगा है कि इनिशियल ओमेगा है? क्वेश्चन में पढ़ के बताओ। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नॉट कितना हो गया? 0 टू अ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 250 आरपीएम, और 250 आरपीएम को आपने यहां पर रेडियन पर सेकेंड में चेंज कर लिया है। तो ये अब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुकी है ओमेगा की। सो ओमेगा नॉट यू नो, ओमेगा यू नो। अब ये क्या पूछ रहा है? टाइम भी दे रखा है कि 0 से इतने रेडियन पर सेकेंड में 5 सेकेंड में आया, तो t is 5। t भी we know। कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इन तीनों में से बताओ। t दे रखा है, ओमेगा नॉट दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, अल्फा निकालना है। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सीधे सीधे इक्वेशन यूज करो, गेम ओवर, ठीक है। अब ये बोल रहा है इफ शी नाउ स्लैम्स ऑन द ब्रेक्स, अब उसने ब्रेक लगाए, कॉजिंग एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इतना। अब देखो ये माइनस में है तो इसका मतलब रिटार्डेशन है, और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में दे रखी है, तो अल्फा की प्योर वैल्यू दे दी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द व्हील टू स्टॉप? अब ये बोल रहा है कि भाई ओमेगा की वेलोसिटी तो रीच हो चुकी, अब उसने ब्रेक लगाए, और ब्रेक इस एंगुलर रिटार्डेशन से उसको व्हील को स्टॉप कर रहे हैं। कितना वक्त लगेगा इसको बंद होने में? वापस से बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छा, व्हील रुक रही है, व्हील स्टॉप हो रही है, तो फाइनल ओमेगा कितनी हो गई? 0। और पहले वाले केस में जो वेलोसिटी रीच हो चुकी थी 250 आरपीएम के करस्पॉन्डिंग जो ओमेगा था, अब वो हो जाएगा ओमेगा नॉट। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वाला फॉर्मूला वापस से लगाओगे, और अब की बार ओमेगा तो हो गया 0, और ओमेगा नॉट हो गया आपका पहले वाला ओमेगा, और अल्फा आपको प्रॉब्लम में दे रखी है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से फिर t निकल के आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एंगुलर और सर्कुलर मोशन। अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ये अपने आप करोगे। इसमें आपको, अब अगर मैं ये पूछूं, इसमें सिर्फ एक हिंट आपको इतना सा दूंगा मैं, ठीक है। अगर मेरा थीटा इज इक्वल टू 200 रेडियन है, तो ये कितने रेवोल्यूशंस हैं ये बता दो मुझे बस। मैं ये बोल रहा हूं कि कोई एक पहिया है या कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जो 200 रेडियन घूम गई। मेरा क्वेश्चन ये है कि 200 रेडियन घूमने में कितने रोटेशन कंप्लीट हुए या कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट हुए? व्हाट इज योर आंसर? सर्कुलर मोशन है, यहां से स्टार्ट किया, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये जहां भी जा रहा है उसके रेडियन काउंट हो रहे हैं, 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन 4 रेडियन, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ऐसे इसने
5, 6, 7, 8, 9, 200 रेडियन कवर कर लिए। एक टोटल रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं? एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? अच्छा, एक रेवोल्यूशन में कितनी डिग्री होती है ये बताओ? पाई बाय 180। 1 revolution is equal to 360 डिग्रीज। भाई 180 तो आपका वो है ना, हाफ रोटेशन है ना। मैं ये कह रहा हूं, मैं यहां से लेकर के अगर पूरा घूम के वापस आ जाऊं तो एक रेवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री हैं? 360 डिग्री। और अगर मैं रेडियन पूछूं तो क्या आंसर होगा? 360 डिग्री कितने रेडियन होते हैं? 6.28 रेडियन। 2 पाई रेडियंस। सही है। तो अब अगर मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि मैंने 200 रेडियन की डिस्टेंस कवर करी तो मैंने कितने रेवोल्यूशन काटे, क्या आंसर होगा आपका? इट्स सिंपली 200 डिवाइडेड बाय 2 पाई। सिंपल लॉजिक है 31। भाई। एक रेवोल्यूशन काटने का मतलब 2 पाई रेडियन कवर करना होता है। तो अगर 200 रेडियन कवर कर रखे हैं तो कितने रेवोल्यूशन कवर किए, यही तो पूछा जा रहा है। तो सिंपली 2 पाई से डिवाइड कर दो थीटा को, आपको मिल जाएगा कितने रेवोल्यूशंस आपने कवर किए हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। So if this concept is clear to you, then you read the second question and try to solve it on your own. ये भी constant angular acceleration की प्रॉब्लम है और इसके अंदर आपको ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। This one, you have to find your theta with the help of this equation, and when you find the theta, you have to eventually divide it with a factor of 2 pi to get the total number of revolutions or rotations. सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। So with this we finish this topic of constant angular acceleration and the 3 equations of motion, and in the next class we will start another topic. ठीक है? Now please don't go away, I will take your attendance.